بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کا 70واں سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے مدات۔ اس سبق کے اندر مد کتنے قسم کے ہیں، کتنی کیٹیگری کے ہیں وہ بتایا جائے گا، اور اس کی پوری تفصیل کہ کب کون کون سا مد ہے، وہ مد کب کب ہوگا، وہ سب تفصیل بتائی جائے گی۔ کس مد کو کتنا کھینچا جائے گا وہ سب بتایا جائے گا۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، پہلے باتیں سن لیجئے، اس کے بعد میں بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ دوسرا سکون، پہلا حمزہ اور دوسرا سکون۔ مد کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور مد کب ہوگا؟ مد ہونے کے لیے دو چیزوں کا ضروری ہے، یا تو حمزہ ہوگا تب مد ہوگا، یا سکون ہوگا تب مد ہوگا۔ میں بتاتا ہوں یہ تفصیل اس کی۔ پھر مد کی 6 اقسام ہیں، 6 قسمیں ہیں، 6 طریقے کے مد آتے ہیں۔ پہلا مد متصل، دوسرا مد منفصل، تیسرا مد لازم، چوتھا مد لین لازم، پانچواں مد عارض، اور چھٹا مد لین عارض۔ یہ 6 قسم کے مد ہوتے ہیں۔ اب یہ 6 ہیں تو وہ 6 کب کب ہوں گے وہ سن لیجئے۔ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ دوسرا مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب دیکھو، مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ 2، 2.5، 2 الف یا 2.5 الف یعنی 4 حرکات یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دیکھو پہلے اس کو سمجھ لیں۔ 2 سبب ہیں مد کے، یہاں لکھ دیتا ہوں اور تھوڑا بڑا لکھتا ہوں تاکہ آپ کو دور سے بھی نظر آئے۔ حمزہ اور دوسرا ہے سکون، جس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ آئیں گے تب مد ہوگا، یا تو یہ آئے گا تو مد ہوگا، یا یہ آئے گا تو مد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مد کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلا ہم نے پڑھا مد متصل اور مد منفصل۔ تو مد متصل ہوگا کب؟ اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی سبق میں بتایا تھا کہ یہ مدنی قاعدہ جو ہے ایسی ترتیب سے بنایا ہے کہ بندہ جب سارے اسباق میں حاضری دے گا پچھلے والے، تب اس کو بعد والے اسباق آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ اب یہ مد کی 6 قسمیں سمجھنے کے لیے پیچھے جو حروف مدہ کا بیان ہم نے پڑھا تھا وہ یاد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو پہلے بتاتے ہیں مد متصل، حروف مدہ کے بعد۔ اب حروف مدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کون کون سے ہیں، تو کہا حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ کب کب ہوں گے یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ حروف مدہ کب ہوں گے، اس کو آج بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی جائے گی۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، دیکھو حمزہ کا ذکر آیا، حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، جوائنٹ۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا، جوائنٹ، ایک ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر، اب یہاں مثال دے دوں میں، جیسے یہاں مثال دی ہے جا، یہ دیکھو جیم الف زبر جا، حروف مدہ، الف مدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ الف مدہ ہوا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ۔ اب اس کے بعد حمزہ آیا ہے اور حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے، تو اب یہ مد پیدا ہو گیا، یہاں پر مد بن گیا، یہ مد ہو گیا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، دیکھو یہ جا اور یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، پورا ایک ساتھ ہے، تو اب یہ مد متصل ہو گیا۔ مد متصل ایک کلمے میں ہے، جوائنٹ ہے حمزہ، اس وجہ سے۔ دوسری ایک مثال دے دوں میں آپ کو،
मद्दे मुनफसिल मद्दे मुत्तसिल की हुर्फ मद्दा या मद्दा के साथ। जैसे ये सीन है, थोड़ा मोटा लिखता हूं ताकि आपको दूर से भी दिखाई दे रहे। ये सीन याजिर सी, सीन याजिर सी या मद्दा हुआ ना, उसके बाद हमजा, सीन याजिर सी उसके बाद हमजा उसी कलमे में है। देखो सीन याजिर सी और हमजा उसके साथ ही है, तो ये मद हुआ, हुर्फ मद्दा, उसके बाद हमजा उसके साथ आया तो ये मद बन गया। तो ये भी मद्दे मुत्तसिल हुआ, इसलिए कि हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, इस वजह से मद्दे मुत्तसिल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद मद्दे मुनफसिल बताते हैं कि हुर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए। मुनफसिल का माना होता है जुदा करना, जुदा होना, अलग होना। मुत्तसिल का माना होता है मिला हुआ होना और मुनफसिल का माना होता है जुदा होना। तो मद्दे मुत्तसिल को क्यों मद्दे मुत्तसिल कहते हैं कि हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में होता है, इस वजह से जॉइंट होता है एक ही कलमे में, तो इसलिए उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। और हुर्फ मद्दे मुनफसिल में चूंकि हमजा दूसरे कलमे में होता है, अलग होता है, उसका कलिमा अलग होता है, उस कलमे में नहीं होता, इसलिए उसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। ठीक है, तो अब मद्दे मुनफसिल कैसे, कौन सा होगा? जैसे यहाँ पर दिया है ये बीमा, बीमा बाजिर बी मीम अलिफ जबर मा, ये अलिफ मद्दा हुआ, मीम अलिफ जबर मा हुआ, अलिफ मद्दा। फिर उसके बाद उनजिला, उनजिला। देखो बीमा उनजिला, अब अलिफ मद्दा है, ये अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर है, अलिफ मद्दा है, और ये हमजा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमजा पर कुछ भी, अलिफ पर कुछ भी आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमजा बन जाता है। ये अलिफ नहीं है बल्कि ये हमजा है। तो हुर्फ मद्दा के बाद हमजा आया और दूसरे कलिमे में आया है, ये पूरा एक कलिमा नहीं है, ये बीमा अलग है और उनजिला दूसरा कलिमा अलग है। तो दूसरे कलिमे में आया, इस वजह से उसको मद्दे मुनफसिल कहेंगे, दूसरे कलिमे में आया है, जुदा गाना कलिमे में आया है, तो इसलिए उसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। जैसे दूसरी और एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कालू, ये काफ अलिफ जबर का, ये अलिफ मद्दा हुआ, और ये वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हुआ। ठीक है, कालू। अब उसके बाद कालू आमन्ना, आमन्ना। अब देखो यहाँ हुर्फ मद्दा है, उसके बाद हमजा दूसरे कलिमे में है, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले, अब ये हमजा आया है, तो ये दूसरे कलिमे में आया है, तो मद्दे मुनफसिल हो गया। ये कालू अलग कलिमा है और आमन्ना अलग कलिमा है, इसलिए उसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। ठीक है, दूसरे कलिमे में आया है, इस वजह से। अब देखो यहाँ हमजा, हमजा की बहस हुई है, हमजा का जिक्र हुआ है। अब हुर्फ मद्दा के बाद हमजा आया, एक कलिमे में हो तो मुत्तसिल और दूसरे कलिमे में हमजा हो तो मद्दे मुनफसिल। अभी इसका जिक्र नहीं हुआ, अभी ये बाकी है, अभी सिर्फ उसी का। हुर्फ मद्दा के बाद ये आएगा तो या तो मद्दे मुत्तसिल होगा या मुनफसिल होगा। ठीक है, ये दो है सबब, एक और दो, तो दो में से ये आएगा तो दो मद होंगे, या तो मद्दे मुत्तसिल या मद्दे मुनफसिल। मुत्तसिल कब? जब एक कलिमे में आए तो। मुनफसिल कब? जब दूसरे कलिमे में आए तो, अलग वाले कलिमे में, बाद वाले कलिमे में आए तब। अब मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, इनको खींचेंगे कितना, कितना खींच कर पढ़ेंगे? तो कहा कि 2 ढाई अलिफ, 2 अलिफ यानी 4 हरकत, ढाई अलिफ यानी 5 हरकत की मिकदार इसको खींच कर पढ़ेंगे। पहले तो एक ही अलिफ खींचना था, हुर्फ मद्दा हो रहा था। ठीक है, अलिफ से पहले जबर था, एक ही अलिफ, एक ही अलिफ के बराबर खींचना था, जा जा। ठीक है, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था क़ाल सिरात, एक अलिफ ही खींचा था। अब यहाँ एक अलिफ नहीं चलेगा, अब यहाँ 4 अलिफ, यहाँ 4 हरकत, 5 हरकत यानी 2 ढाई अलिफ खींचना पड़ेगा। जा जा ऐसे मत करना पड़ेगा।
बिमा उनज़िला, यहाँ दूसरा कायदा भी हो रहा है इख्फा का, इसलिए सीअत, ऐसे इसको फिर खींच कर पढ़ेंगे। अब उसके बाद तीसरा मद, मद्दे लाजिम। तीसरा मद है मद्दे लाजिम। देखो हुरूफे मद्दा के बाद सुकून असली। अब ये जो है ना, ये जज्म, तो तशदीद भी वही है, जज्म ये भी सुकून असली, इसको सुकून असली कहते हैं। ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, तशदीद और जज्म दोनों एक ही चीज है। हुरूफे मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। हुरूफे मद्दा के बाद देखो दो अलिफ जबर दो अलिफ मद्दा हुआ, ठीक है, उसके बाद आ गई तशदीद, इसको सुकून असली कहते हैं, ठीक है। जैसे वालन, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर था, अलिफ मद्दा, उसके बाद सुकून आया, सुकून असली, ये दोनों एक ही चीज है, मैंने बताया दोनों एक ही चीज है। तो हुरूफे मद्दा के बाद सुकून असली आया, तो अब ये मद्दे लाजिम हुआ, हुरूफे मद्दा के बाद आया है, तो हुरूफे मद्दा के बाद, ठीक है, अलिफ मद्दा के बाद, तो मद्दे लाजिम हुआ, ठीक है। इस तरह दूसरी भी एक उसकी मिसाल दे देते हैं, जैसे आल आना। देखो एक और बात पिछले सबक में से, हुरूफे मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, एक अलिफ के बराबर उनको खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत, खड़ा जबर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, वो भी हुरूफे मद्दा के ही कायम मकाम है, उनको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर ही पढ़ते हैं। यहाँ हुरूफे मद्दा नहीं है लेकिन खड़ी हरकत है, खड़ा जबर है, खड़ी हरकत, तो ये भी हुरूफे मद्दा के कायम मकाम है, तो गोया ये भी मद्दा ही हुआ, तो ये अलिफ मद्दा हुआ, उसके बाद सुकून असली है, मद्दा के बाद सुकून असली, तो ये अब मद्दे लाजिम हो गया। आल आना, तो अब यहाँ मद पैदा हो गया, इसको खींच कर पढ़ेंगे, आल आना, यहाँ भी बोलन, ऐसे खींच कर पढ़ेंगे, ये मद्दे लाजिम हो गया, ठीक है। अब मद्दे लीन लाजिम, ये भी वही है, हुरूफे लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। मद्दे लाजिम में क्या था, हुरूफे मद्दा के बाद सुकून असली आया था, ये सुकून असली हुरूफे मद्दा के बाद आया था, और मद्दे लीन लाजिम में हुरूफे लीन के बाद आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ऐन या जबर आई, ये हुरूफे लीन, या लीन हुई, या साकिन से पहले जबर है तो या लीन है, उसके बाद ये नून भी साकिन, ये नून भी साकिन, तो अब हुरूफे लीन के बाद सुकून आया है, तो अब यहाँ पर भी फिर मद हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे, आइन आइन खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को खींचेंगे कितना वो बता रहे हैं। मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ें। इसको फिर 3 अलिफ तक इससे मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल से ज्यादा खींचकर इनको पढ़ेंगे, चाहे मद्दे लाजिम हो या मद्दे लीन लाजिम हो। हुरूफे मद्दा के बाद सुकून असली आए तो मद्दे लाजिम, और हुरूफे लीन के बाद आए तो मद्दे लीन लाजिम, ठीक है। अब उसके बाद 5वां मद्दे आरिज, हुरूफे मद्दा के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज होगा। जैसे मुस्लिमून। मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम में क्या हो रहा था, हुर्फे मद्दा के बाद सुकून असली, हुर्फे लीन के बाद सुकून असली, सुकून असली कहा था वहां, यानी पहले से साकिन हो। मद्दे आरिज में क्या होगा, हुर्फे मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। आरजी का माना होता है जैसे अपने कहते हैं ना टेम्परवारी, है ना, वक्ती तौर पर हमने सुकून लगा दिया हो, वक्फ करने की वजह से हमने हर्फ को साकिन कर दिया हो। जैसे मुस्लिमूना, देखो मुस्लिमूना है, मुस्लिमूना, अब हमें यहां वक्फ करना हो, मिसाल के तौर पर यहां आयत है, ठीक है, अब मुस्लिमूना है, नून के ऊपर जबर है, लेकिन हम यहां रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मुस्लिमून, नून को जबर की बजाय
जज्म लगा देंगे। मुस्लिमून न था लेकिन हमने पढ़ा मुस्लिमून, तो अब यहां पर मद्दे आरिज होगा। मद्दे आरिज होगा, क्यों आरिज होगा? हुरूफ मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश मद्दा हुआ, और ये सुकून है, लेकिन सुकून असली सुकून नहीं है, आरजी सुकून है। वक्ती तौर पर हमने इस पर जज्म लगाया है, पहले से हमेशा से उस पर जज्म नहीं है, हमने उसको जज्म लगाया है वक्फ करने की वजह से। ऐसे तो वक्फ नहीं कर सकते थे हम, मुस्लिमून ऐसे तो वक्फ नहीं कर सकते थे, हमने जज्म लगाया है वक्फ करने के लिए, तो इसको आरजी सुकून कहते हैं। तो चूंकि ये आरजी सुकून है इसलिए मद्दे आरिज कहेंगे उसको, मद्दे आरिज। वक्ती तौर पर हमने उसको ये सुकून लगाया है, जज्म लगाया है इस वजह से। अब इसी तरह मद्दे लीन आरिज, हुरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज होगा। जैसे शफातैन, जैसे शफातैन देखो, अब यहां ता या जबर तय, या लीन है, या साकिन से पहले जबर आया, ये तो ऊपर वाला है, इसको छोड़ दो, लाम का ज़ेर है ये तो। शफतैन, या साकिन से पहले जबर आया तो या लीन है। अब या लीन के बाद अगर यहाँ मिसाल के तौर पर जज्म है या ज़ेर है या जबर है, लेकिन हमने वक्फ करने की वजह से यहाँ पर जज्म लगा दिया, था तो शफतैनी, शफतैन जो भी, लेकिन हमने चूंकि यहाँ रुकना है, आयत आ गई है तो यहाँ रुकना है, इस वजह से हमने इस ज़ेर को हमने जज्म बना दिया वक्फ करने के लिए। शफतैनी था, शफतैन, तो हुरूफे लीन है, उसके बाद सुकून आया। ये सुकून कौन सा है? आरजी सुकून है। हमने वक्ती तौर पर उसको जज्म लगाया है, सुकून लगाया है, नून को वक्ती तौर पर साकिन किया है। तो चूंकि वक्ती तौर पर आया है, आरजी तौर पर साकिन आया है, ये हर्फ सुकून वक्ती तौर पर आया है, इसलिए उसको मद्दे लीन आरिज कहेंगे। हुर्फे लीन के बाद आया है इसलिए आप उसको मद्दे लीन, अब यहां मद पैदा हो गया, मद्दे लीन आरिज कहेंगे। और यहाँ क्या कहेंगे? मद्दे आरिज, क्योंकि हुर्फे मद्दा के बाद आया है आरजी सुकून, तो हुर्फे मद्दे आरिज, और हुर्फे लीन के बाद आरजी सुकून आया तो मद्दे लीन आरिज कहेंगे। अब इनको कितना खींचेंगे? मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज को 1, 2 या 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार तक खींचकर पढ़ें। अब उसके अंदर और ज्यादा भी तफसील है, मैंने इससे पहले वाले सबक में बताया था कि ये किरात की इब्तिदाई किताब है, इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील और डिटेल नहीं बताई, सिर्फ मोटी मोटी बड़ी बुनियादी बातें बता दी गई हैं, तो वही बातें मैंने आपको बताई हैं, वरना इसके अंदर और ज़्यादा बहुत तफसील है। अब सबक को पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा जी। अब देखो इसके अंदर जो भी कवायद आएंगे उसको आपको तलाश करना है, पहचानना है कि ये मद कौन सा हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। और वो मद ये हो रहा है तो फिर उसको खींचेंगे कितना? वल्लाई, ई को भी खींचेंगे, या मद्दा है। वल्लाई सीअत उलाइका हदाइक़ क़ुरूइन औलिया बिमा उन्ज़िला। यहाँ इक्फा भी हो रहा है, नून साकिन के बाद हुरूफे 15, हुरूफे इक्फा के 15 हुरूफ में से जा आया है। बिमा उन्ज़िला क़ालू आमन्ना। देखो क़ाफ हुर्फ़े मुस्तालिया में से उसको पूल भी करेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है तो पहले तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क़ा, फिर उसके बाद लू, यहाँ फिर मद्दे मुनफसिल हो रहा है, दूसरे कलीमे में हमजा आ रहा है हुर्फ़े मद्दा के बाद इसलिए, तो उसको फिर खींचेंगे 2 अलिफ 3 अलिफ 2 अलिफ 2 अलिफ। फिर उसके बाद आ ये खड़ी हरकत है तो उसको भी हुर्फ़े मद्दा के कायम मकाम होने की वजह से 1 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे। फिर नून मुशद्दद है
اس سے پہلے پڑھا نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے، اس کو گننے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں گننا کریں گے، پھر الف سے پہلے زبر ہے تو وہاں الف مدہ ہوا تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ قالوا آمنا نا آمنا ایسے نہیں، آمنا ایسے پڑھیں گے تو الف مدہ نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ قالوا آمنا یا ارض را پور را ساکن سے پہلے زبر، یا ارض ضاد کو کھینچیں گے نہیں، ہؤلائی یا بنی اسرائیل، یا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے اس وجہ سے، پھر اس کے بعد مد منفصل ہو رہا ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمے میں، اور بنی اسرائیل میں بھی پھر وہاں پر مد ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی کھینچیں گے۔ لام پر تشدید ہے تو وہاں پر بھی اس کو دیر کریں گے، ایک تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے مشدد حرف کو۔ پہلے تو مد کیا، مد لازم ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد کرنے کے بعد پھر لام پر تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے، مشدد حرف ہے اس وجہ سے۔ دابۃ یہ حرف قلقلہ با ہے وہ مشدد ہے تو اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، دابۃ الآن حمزہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات کو الف حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اس وجہ سے۔ الآن الذکرین را کو پور کریں گے اور وہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے را پر زبر ہے۔ جان نون مشدد پہلے مد ہوگا مد لازم، اس کے بعد نون مشدد کا گننا بھی کریں گے، جان اور ہونٹوں کو گل کریں گے، دو پیش ہے اس وجہ سے۔ مد دال قلقلہ دیکھو یہاں قلقلہ ہوگا، دال کی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، مدھامتانی مد لازم بھی ہو رہا ہے، میم مشدد ہے گننا بھی ہوگا، تا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے اس وجہ سے، اور دال میں قلقلہ ہوگا، مدھامتانی اتحاجونی یا مدہ پہلے مد لازم ہو رہا ہے، اس کے بعد دوسرا مد لازم نون مشدد میں گننا کر کے پڑھیں گے، گننا بھی کریں گے، پھر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اتحاجونی یہ جیم مشدد ہے حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اتحاجونی کافتن الحاقۃ حروف قلقلہ قاف، والصافات فا کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو بھی ٹھہر کر پڑھیں گے، والصافات حاجوک واو مدہ، وحاجہ الٹا پیش ہے کھڑی حرکات اس کو بھی ایک الف کے برابر، تحاضون واو مدہ، یحادون دیکھو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، نون حرف نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا ہے، یتماسا سا ایسے مشدد ہے سین تو اس کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے،
यतमास्सा अलिफ मद्दा भी करेंगे। वलव्वाल्लीन, देखो अब यहाँ पर अगर ज़बर लगाएंगे तो लीना, सिर्फ या मद्दा लीना। अब यहाँ अगर आयत करनी है, देखो आयत भी दी है, तो अगर आयत करनी है तो फिर यहाँ दो मद हो जाएंगे। कैसे? वलव्वाल, हुर्फ मद्दा है, उसके बाद लाम साकिन, सुकून असली, तो मद्दे लाजिम हुआ। उसके बाद मद्दे आरिज होगा, या मद्दा के बाद आरजी सुकून हम लगाएंगे, उस जबर को जज्ब लगाएंगे वक्फ की वजह से, आरजी तौर पर है, वक्ती तौर पर, तो दो मद हो गए। वलव्वाल्लीन, वलव्वाल्लीन, लाम पर थोड़ा रुकेंगे, मुशद्दद है तो। या उलिल अलबाबी, या उलिल अलबाबी, मद्दे मुनफसिल, या अलग है और उसके बाद हमजा दूसरे कलीमे में है, लिखा हुआ एक साथ दिखता है लेकिन ये दूसरा कलमा है, माना अगर देखेंगे तो पता चलेगा। या हरफ निदा है, फिर उलिल अलबाब ये मुनादा है। या उलिल अलबाबी, बाबी, बाबी ज़ेर है इस वजह से, बाबी सिर्फ अली मद्दा, लेकिन अगर आयत की वजह से वक्फ करेंगे तो फिर यहाँ भी मद्दा पैदा हो जाएगा, मद्दे आरिज हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? या उलिल अलबाब, अब बा में कलकला करेंगे, बा साकिन है तो हुर्फ कलकला में से है तो उसमें कलकला करेंगे। या उलिल अलबाब, ऐसे। यतसाअलूना, अलूना, बस सिर्फ वाव मद्दा, यहाँ मद किया, हाँ मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, उसके बाद अलूना वाव मद्दा, क्योंकि ज़बर लगाया है, वक्फ की वजह से साकिन करेंगे तो फिर मद पैदा हो जाएगा, मद्दे आरिज होगा। यतसाअलून, यतसाअलून, रब्बिल आलमीन, मीना, मीना, या मद्दा एक अलिफ के बराबर, बस वक्फ करना होगा तो फिर मद पैदा होगा। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, ये। अब ये तो मद्दे आरिज हो रहा था, आरजी तौर पर सुकून लगा रहे थे और हुर्फ मद्दा के बाद। अब ये हुर्फ लीन के बाद देखो, खौफिन, खौफिन, वाव लीन है, वाव साकिन से पहले जबर और उसके बाद खौफिन, लेकिन अगर वक्फ में इस फा को हम जज्म लगा देंगे, आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर अगर उसको साकिन कर देंगे तो मद पैदा हो जाएगा, मद्दे लीन आरिज होगा। तो फिर कैसे पढ़ेंगे? खौफ, खौफ, उसमें कसर औला है, कम खींचना ज्यादा बेहतर है, वो यहाँ पर नहीं दिया इस किताब में, इसलिए बताया भी नहीं है। खौफ, कुरैशिन, या लीन, या साकिन से पहले जबर, कुरैशिन, रा पुर करेंगे, ऑफ भी पुर करेंगे, कुरैशिन, ये मद नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको वक्फ कर देंगे, सीन को जज्म लगा देंगे, सुकून लगा देंगे वक्ती तौर पर, तो फिर मद पैदा हो जाएगा। कुरैश, 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 ये मद पैदा हो जाएगा। तो ये मदनी कायदे का 70वां सबक था। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।